Friends, what if I tell you that you can prepare for RBI Grade B examination without coaching? Yes, you have heard right. Without coaching, you can prepare for RBI Grade B examination. You might be surprising. The answer is yes, definitely you should be surprising, because this is the fact that you can prepare for RBI Grade B examination without coaching. And in this session, I would be telling you how you can prepare for the RBI Grade B exam without doing the coaching. Right, without taking guidance from the coaching. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's begin the discussion on clearing RBI Grade B examination 2025 without coaching. So first of all, you need to understand some important things, then only I would tell you how you can prepare on your own, how you can prepare without coaching for the RBI Grade B examination. So first of all, you need to understand the pattern of this examination, because once you understand the pattern, then obviously यहाँ पे चीजें आपके लिए easy हो जाएंगी. You can make different types of strategies. So if I tell you about the pattern of phase 1, so you can see the phase 1 is of 100-200 marks. Basically यहाँ पे 200 marks का phase 1 होता है, right? जहां पर there are 4 components in the phase 1, that is general awareness, reasoning ability, English language and the quantitative aptitude. These are the 4 components in the phase 1. So number of questions you can see in general awareness 80 questions are there, reasoning ability में 60 questions are there, English में 30, quantitative aptitude में 30 questions are asked, which makes the total of basically 200 here. And similarly the marks are allocated, so one mark is allocated for every question, right? So यहाँ पे you can see the marks, so 200 marks का basically यहाँ पे चीजें होती हैं. And the time is given here, so 25 minutes will be given for the general awareness, 45 minutes will be given for reasoning ability, and 25 minutes each given for English language and the quantitative aptitude, right? When I talk about the further important thing, that is sectional and overall cutoff is there. तो यहाँ पे one important thing is there, a sectional cutoff is there and overall cutoff is there. So you are not supposed to clear only the overall cutoff, rather you have to clear the sectional cutoff as well. And also there is a negative marking of 1/4 of marks allotted. तो यहाँ पे negative marking भी होती है 1/4 की, right? So यहाँ पे अगर आप 4 questions गलत कर रहे हैं तो आपके 1 marks के जो question है, जो आपका एक क्वेश्चन है बेसिकली करेक्ट वाला, वो उसे यहाँ पे गलत कर लिया जाएगा, पेनलाइज कर लिया जाएगा, राइट? सो दिस इज द फेज 1. Phase 2, if I tell you about the pattern of phase 2 examination, so 3 papers are there: ESI, finance and management, and the descriptive English. So these 3 are the paper. If I tell you about the ESI and the finance and management, so 50% is the objective in both FM and ESI, and 50% is the descriptive in both ESI and FM, and descriptive English is completely descriptive, right? Marks allocation is same. 50% marks is allocated for the objective, 50% marks are allocated for the descriptive, both in FM and the ESI. And in the descriptive English, entire 100 marks are allocated for the descriptive part, which makes the total of 300. मतलब 100 marks का एक पेपर हो गया. ESI is of 100 marks, FM is of 100 marks, and the descriptive English is of 100 marks, right? Here when I talk about the time, so you can see for objective part you will get 30 minutes. So you can see in the ESI objective as well as FM objective you will get 30 minutes, right? And in the 30 minutes you have to attempt 30 questions of 50 marks, right? For the descriptive part, in all the 3 papers you will get 90 minutes. So here you can see 90 minutes for ESI descriptive, 90 minutes for FM descriptive, and 90 minutes for the descriptive English as well, which makes the total of 5 hours or 30 minutes. ठीक है? So 5 hours and 30 minutes you would be giving the examination of phase 2 of RBI Grade B exam. और यहाँ पे एक सिटिंग में नहीं होता है, 2 पेपर एक सिटिंग में होता है और एक पेपर के बीच में आपको गैप मिलता है, ठीक है? बट होता सेम डे पर ही है. And if I tell you about the number of questions, so I told you in the objective part you will have the 30 questions of 50 marks, ठीक है? And in the descriptive part you would be having 6 questions, out of which you have to attempt 4 only. Pattern is same for both FM and ESI. In the descriptive English you will get 3 questions. One is essay, one is reading comprehension, and one is the Pressy writing, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. एंड ऑल्सो ऐसे में यू विल हैव अ चॉइस, ठीक है? वहां पे ऐसा नहीं कि कंपलसरी रहेगा, वहां पे आपके पास चॉइस रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द ऐसे टॉपिक्स. Again, negative marking of 1/4 of marks allotted to the objective question. तो objective question में there will be the provision of negative marking. तो सेम जैसे हमने 1/4 वाला phase 1 में देखा था, phase 2 में भी 1/4 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? चलिए बात करते हैं phase 3 की. phase 3 is the basically interview. So candidates will be shortlisted for the interview based on the aggregate of marks obtained in phase 2, paper 1, paper 2 and paper 3. तो paper 1, paper 2 and paper 3 में जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही you will get the interview call. और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे minimum aggregate cut off marks for being shortlisted for interview will be decided by the board in relation to the number of vacancies. So वो कट ऑफ जो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो वेरिएशन होता रहेगा उसमें बेसिकली यहाँ पर. एंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू 75 मार्क्स. तो 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से फिर फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स मिलकर ही यहाँ पर मेरिट डिसाइड होती है. सो दिस इज अबाउट द पैटर्न गाइज. व्हेन आई टेल यू अबाउट द कट ऑफ, सो यू कैन सी द कट ऑफ हियर,
ठीक है। फेज वन का कट ऑफ यू कैन सी, सो मोस्टली यू हैव टू फोकस द कट ऑफ फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, क्योंकि वहां पे पैटर्न में चेंज हुआ था इन द एग्जामिनेशन। तो वहां पे यू कैन सी ओवरऑल कट ऑफ इज समवेयर अराउंड इन 60s, बेसिकली यहाँ पे 60s, यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे 60s में है, ठीक है। सो दिस इज द कट ऑफ 2024 एग्जामिनेशन. So I told you basically कि overall cutoff is there and also individual component wise cutoff is also there. So you can see the component wise cutoff here. तो यहाँ पे देखिए 16 marks in the general awareness, 12 marks in 22-23 and 24 में it is 20 marks. ठीक है। English में you can see 2021 में 6 marks, 22-23 में it is 4.5 marks and 7.5 marks in 2024. Then quant में 6 marks in 2021, 4.5 marks in 22-23 and 7.5 marks in 2024. देन रीजनिंग में बेसिकली 2021 में 12 मार्क्स, ठीक है, 9 मार्क्स इन 22-23 एंड 24 में इट इज 15 मार्क्स. सो दिस इज द बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ एंड दीज ऑल आर द ओवरऑल कट ऑफ गाइस. तो यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखें या आप ओवरऑल कट ऑफ भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, विच मींस यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लियर द फेज वन यू हैव टू फोकस ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा, स्मार्टली आपको यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा. बट राइट नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम to focus on most important topic. This is the time to focus on the entire syllabus because for 2025 examination you have sufficient time, right? But I'm giving you the hint how you can make a strategy by seeing the basically overall cutoff. तो यहाँ पे you can see cutoff this is out of 200, right? So 200 में आपको इतना स्कोर करना है, which means paper is difficult here. ठीक है, पेपर डिफिकल्ट है. तो अगर आप लिमिटेड टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से करेंगे देन ऑल्सो यू कैन क्लियर द कट ऑफ. एंड इंडिविजुअल कट ऑफ्स की बात करें वो भी बहुत लिमिटेड है. तो आपको यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक्स करने होंगे जिसके लिए बेसिकली जिसकी हेल्प से यू कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल. बट यहाँ पे राइट नाउ अगेन आई वुड बी रिपीटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन द limited topics, rather you should focus on the entire topics, all the syllabus, right? फेज टू के कट ऑफ की बात करेगा तो फेज टू के कट ऑफ में दैट इज यू कैन सी फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स. उससे पहले भी दिया मैंने बट दैट इज फॉर योर रेफरेंस. 2021 की बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे कट ऑफ फॉर फेज, यहाँ पे फेज टू के कट ऑफ की बात कर रहे हैं. सो दैट इज 187 आउट ऑफ 300, 171.5 आउट ऑफ 300, 169 आउट ऑफ 300. और 2024 का अभी रिसेंटली ही एग्जाम हुआ है तो वहां पर बेसिकली रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है. बट दैट इज समवेयर, दैट शुड बी समवेयर अराउंड आई कैन से 155 से लेकर 165 के तक आसपास रहने चाहिए. बिकॉज दिस ईयर पेपर वॉज डिफिकल्ट, पेपर डिफिकल्ट आया था इस साल, चाहे हम ESI की बात करें चाहे FM की बात करें. इंग्लिश का जैसा पेपर आता है वैसा ही इस साल था. बट यहाँ पे ड्यू टू FM एंड ESI कट ऑफ शुड बी लोअर होना चाहिए बट दिस कैन बी चेंज, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ फिक्स बता रहा हूं बट यहाँ पे इस रेंज में होना चाहिए. इफ आई टेल यू अबाउट द फाइनल सिलेक्शन तो यू कैन सी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे बहुत डिफरेंस है. 187.5 252, 171 234, 169 229. ठीक है, यहाँ पे गाइस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे आपका फोकस होना चाहिए कि फेज टू में जितना ज्यादा मार्क्स आप यहां पे खींच सके उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. रीजन भी कि इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है, कई बार इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं बट वो चीजें आपके अकॉर्डिंग जा नहीं रही होती क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है. ठीक है, देयर इज नो सेट ऑफ लिमिटेड टॉपिक्स दैट इज फॉर द इंटरव्यू बेसिकली. तो वो आपके लिए कोई लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स नहीं होते हैं जैसा आपके पास फेज वन और फेज टू के लिए थे. एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंटरव्यू पार्ट. सो योर फोकस शुड बी टू गिव योर बेस्ट फॉर द फेज टू. जितने ज्यादा मार्क्स वहां पर लेकर आएंगे उतना ही कम बर्डन आपको इंटरव्यू वाले पार्ट में रहेगा. ठीक है, सो फॉर 2024 इट कैन बी समवेयर अराउंड यू कैन से 215 to 220 क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था. तो कंसीडरिंग दैट इसके आसपास होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ गाइज द ओवरऑल कट ऑफ. सो योर फोकस शुड बी ऑन बेसिकली कि आप यहां पर अगर मैं आपको बोलूं बेसिकली कि आप यहां पर मान लीजिए 70 मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन सपोज मान लीजिए कि FM वाले पार्ट में और स्कोरिंग 70 मार्क्स. ठीक है, और यहाँ पे आप समवेयर अराउंड 65 के आसपास आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं ESI वाले में और इंग्लिश वाले में. इफ यू आर स्कोरिंग 70 मार्क्स तो बेसिकली यू कैन गेट द इंटरव्यू कॉल. ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो ये आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि जो टॉपिक आप यहाँ पे जो कंपोनेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली वो कंपोनेंट में इस टारगेट के साथ रहेगी. 70 तो मैं कम बोल रहा हूँ, जनरली FM में ज्यादा मार्क्स आते हैं बट दिस ईयर बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. तो इस ईयर थोड़ा सा चैलेंज होगा. दैट इज वाई आई हैव टेकन 70. अदरवाइज 75 आ जाते हैं लोगों, 75-80 तक मार्क्स आते हैं यहाँ पे FM वाले कंपोनेंट में, राइट? सो अगर आप यहाँ पे टारगेट बनाकर चल रहे हैं देन डेफिनेटली यू वुड गेट द इंटरव्यू कॉल अगर आप यहाँ पे इस टारगेट के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो.
नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी पार्ट, सो आई टोल्ड यू बेसिकली कि आप यहाँ पे बिना कोचिंग के भी, ठीक है, बिना कोचिंग के भी यू कैन क्लियर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ राइट सोर्सेज एंड राइट स्ट्रेटेजी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट सोर्सेज एंड राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना इस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको आप डेफिनेटली देखिए. अगर आपने वो नहीं किया है गाइस तो फिर आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे सेल्फ प्रिपरेशन. ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. तो व्हाट यू नीड टू डू विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट कब से करना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर. इसको आपको नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स में आपको ये खत्म करना है क्वांट वाला कंपोनेंट. ठीक है, सो नवंबर दिसंबर में यू हैव टू कंप्लीट द क्वांट इटसेल्फ. देन हम बात करें फर्दर व्हाट आर द टॉपिक्स, बिकॉज टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस. ठीक है, क्वांट का टॉपिक नहीं मेंशन है, सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट का नेम मेंशन है. टॉपिक्स वी हैव डिकोडेड फॉर यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड. सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream. Further, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration, 2D and 3D. So these all are the topics that you have to prepare for the quant component. And I told you guys, do not focus on the important topics at this point of time. You should focus on covering the entire syllabus, because यहाँ पे if you see this year RBI grade B phase 2 examination तो बहुत ही पैटर्न के अगेंस्ट आया. ठीक है, जैसा पैटर्न है पैटर्न रिवर्सल हुआ यहाँ पे. सो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक के साथ यू कैन इजीली क्लियर द पेपर, राइट. तो आपको सारे टॉपिक्स पर फोकस करना है. एंड डू नॉट ट्राई टू मग अप द थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, रादर फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, राइट. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इफ आई टेल यू द सोर्सेज फॉर दिस, सो यू कैन रेफर अरुण शर्मा ऑल्सो, यू कैन रेफर RS अग्रवाल ऑल्सो. डू नॉट रेफर बोथ द बुक्स. ठीक है, इनमें से कोई एक ही बुक रेफर करिए. दीज बोथ बुक्स आर वेरी गुड, इनको आप प्रिपेयर करिए. बट यहाँ पे ये सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं है, दे आर फॉर different examinations. So for that, when you cover the topics from these books, make sure that you are also covering the previous year paper, right. Previous year paper is very very important. That will guide you ki what is the direction, whether you are going in a right direction or not, right. So this will be basically told by the previous year paper. And guys, if you want further question for practice, so you can refer the SBI PO mains paper. ये भी आपकी हेल्प करेगा. आपको सेम ही लेवल रहता है. ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस का जो पेपर है क्वांट का और आपका आरबीआई का क्वांट का लगभग सेम लेवल रहता है. सो इफ यू वांट फर्दर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यू कैन रेफर एसबीआई पीओ मेंस पेपर. ठीक है, एंड रेफर वन ऑफ दीज बुक्स. ठीक है, इनमें से कोई एक ही बुक रेफर करिए. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इफ आई टेल यू अबाउट द रीजनिंग एबिलिटी, सो कब से आपको स्टार्ट करना है? अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर दिसंबर ओनली. जितना जल्दी आप स्टैटिक वाले कंपोनेंट खत्म कर लेंगे उतना ज्यादा बाद में आप रिवाइज भी कर पाएंगे. यू वुड बी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है, तो इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में यू हैव टू कंप्लीट द रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो, राइट. टॉपिक की बात करूं, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच आर नॉट मेंशन्ड in the syllabus, but based on the previous year paper we have decoded the topic. So alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, banking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. So these all are the topics that you have to do in the reasoning part, and that you have to do in November December only. November December में try to complete all these topics. बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, आराम से आप कर लेंगे. ठीक है, if you are devoting 5 to 6 hours on a regular basis. If I tell you about the sources, so basic primary source should be the RS Agrawal. ठीक है, again ये book आपके लिए बहुत important है, आप इसको refer कर सकते हैं. This is a very good book for the reasoning part, and again, but this is not completely dedicated for the RBI Grade B examination. So clear your basics from this book, and guys, you can simply focus on the previous year paper, because again, previous year paper is very very important for all the components. They will give you the direction. They will let you know whether you are going in a right direction or not, whether you are on right track or not. आपको लग रहा है मैं preparation कर रहा हूँ, but हो सकता है preparation आपकी नहीं हो पा रही है लेवल पर जिस लेवल पे एग्जाम के रिक्वायरमेंट है. सो वो आपको पता चलेगा आफ्टर अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर पेपर. एंड इफ यू वांट फर्दर क्वेश्चंस, यू शुड गिव द एसबीआई पीओ मेंस रीजनिंग पेपर, राइट. Moving on to the English part. English part when to be started? You can start in the month of January, February, Jan Feb में कर सकते हैं, और you can further delay this particular component. ठीक है, English component को आप बाद में भी कर सकते हैं, और अगर आप continuity में करना चाह रहे हैं, so you can complete this component in the month of January and February 2025. Topics की बात करें, so these all are the topics for RBI Grade B examination. Parts of speech, structure of sentences, subject verb agreement, noun, pronoun, verb, tense, modals, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, further articles, adjectives, determiners, adverb, active passive, rearrangement parajumbles, closed test,
reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and one word substitution. So these all are the topics under the English component which you have to cover, right? Primary source की बात करेगा, so this is the primary source SP Bakshi, but यहाँ पे previous year paper will play a very crucial role and also mock test will play a very crucial role. ये जो वो topics है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, right? So you are not supposed to have a dedicated preparation for the English component until and unless it is too weak. तो यहाँ पे dedicated preparation नहीं चाहिए. Rather what you can do, you can focus on reverse engineering approach for the English component. What is the reverse engineering approach? You can prepare this component by solving, by giving the mocks itself. ठीक है? So you can focus on previous year paper, you can focus on mock test. So with the help of previous year paper and mock test, you can prepare for the English component of RBI Grade B examination. And further, if you want extra questions, you can refer SBI PO mains paper. Clear? So guys, I am telling you how you can prepare the particular things on your own, particular components on your own, and what should be a timeline of completing that. ठीक है, इन सब की help से you can focus on the self preparation. ठीक है. Then moving on to the general awareness part, very important. When to be started, guys? Do not start the current affairs part at this point of time. Rather starting, you should start from December 2024 onwards. ठीक है, December 2024 से start करिए, और अगर आपको थोड़ा सा और डिले करना है, you can start from January 2025 also. So there is no issue in that. आप January 2025 से भी उसे start कर सकते हैं, बट आप दिसंबर से पढ़िएगा. ठीक है, स्टार्ट आप जनवरी से कर रहे हैं, बट दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स डेफिनेटली पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर थोड़ा सा पहले हुआ तो दैट वुड हेल्प यू. So you should first of all focus on that. You have to start the current affairs from December 2024, and further guys, अभी के लिए what you can do not completely neglect the current affairs, rather make a habit of reading the newspaper. So you can read Hindu, you can read Indian Express, Live Mint, Business Standard, Economic Times, any of the newspaper. Do not focus on all the newspapers. ठीक है, इतना important नहीं है. एक newspaper पढ़िए, read the editorial section, read the international section, read the economy section. So these are some important sections that you have to cover. Do not refer the local news, that is not important. ठीक है, sports वाली news भी मत पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है. If any question is asked in the phase 1 of the examination, so that would be covered in the current affairs magazine only, right? So do not focus on the स्टेट लोकल न्यूज, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे बर्डन हो जाएगा, ओवर बर्डन आपको लगने लगेगा. ठीक है, सो फ्रॉम नाउ यू कैन फोकस ऑन द न्यूज़पेपर, राइट? बट मेनली जो करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर 2024. यहां पे बात करें गाइस कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से एरियाज हैं. देयर आर मल्टीपल एरियाज. फॉर एग्जांपल स्टैटिक पार्ट है एंड द करंट अफेयर्स पार्ट है. सो 80 मार्क्स का पेपर है इन द फेज 1. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टैटिक पार्ट बेसिकली 10 मार्क्स का है, राइट? एंड करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स. तो यू आर नॉट सपोज टू क्रैम ईच एंड एवरी स्टैटिक पार्ट. ठीक है, कि यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स कौन से हैं, वाटर बॉडीज कौन सी है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, नाउ द ट्रेंड has been changing basically, and they derive the static question from the current only. So for example, recently India has won the World Cup, ठीक है, T20 World Cup. तो this is the current information, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए. But static information can be where is the headquarter of International Cricket Council, that is ICC, situated. So आपको वो चीज पता होनी चाहिए. So this question is derived from the current part only. Then you should not be surprised in the examination कि यार ये question कहाँ से आ गया. This has been derived from the current only, right? सो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो यहाँ पे अप्रोच है वो बदलने की जरूरत है इन दिस पार्ट. करंट अफेयर्स की बात करें तो ये यहाँ पे बेसिकली देयर आर मल्टीपल एरियाज, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स और अदर करंट अफेयर्स. ठीक है, तो ये सारे एरियाज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट. यहाँ पे जो मार्क्स दिए हैं ये कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, दे कैन फर्दर वेरिएट. ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है. स्कीम्स यहाँ पे 2 मार्क्स किया है, रिपोर्ट्स यहाँ पे 10 मार्क्स किया जाए, कोई भरोसा नहीं है. बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये एक ऐसे एवरेज मार्क्स है जो जनरली रहे ट्रेंड में. ठीक है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए आई हैव मेंशन्ड द मार्क्स हियर आल्सो, सो दैट यू कैन गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एरियाज. गॉट इट? Then बात करें what should be the sources for the preparation of current affairs if you are preparing on your own. In that case you have to refer the Hindu newspaper. Hindu newspaper is very important. Hindu मतलब any one newspaper, right? Hindu, Live Mint, Indian Express, Business Standard, any of the newspaper you have to refer. So one newspaper for regular reading is important. Then you have to visit the RBI's website. ठीक है, RBI website में you have to prepare the RBI की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स रहती हैं, दैट यू हैव टू कवर. प्रेस रिलीजेस आर इंपॉर्टेंट. देन आरबीआई की जो फर्दर एनुअल रिपोर्ट होती है दैट, एंड आरबीआई की जो नोटिफिकेशंस हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड दैट यू कैन कवर फ्रॉम द आरबीआई's वेबसाइट ऑन योर ओन, राइट? देन फर्दर पीआईबी
पीआईबी में यू विल गेट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट स्कीम, जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए. सो यू विल कम अक्रॉस विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, ईएसआई रिपोर्ट्स, ईएसआई स्कीम्स. जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होगी वो भी आपको मिल जाएंगी. इंपॉर्टेंट स्कीम्स तो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑन पीआईबी. तो ये 3 चीजें पर आपको फोकस करना है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन ऑल दीज एरियाज. ठीक है, आप ये सारे एरियाज पर फोकस कर सके. फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज एंड ऑल्सो एट द एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दैट यू हैव टू कवर. ठीक है, बात करें यहां पे करंट अफेयर्स करने कितने मंथ्स के गाइस. सो यू हैव फॉर फेज 1 यू हैव टू कवर 5 मंथ्स करंट अफेयर्स बिफोर द एग्जामिनेशन. तो जब भी आपका फेज 1 एग्जाम होगा उससे 5 महीने पहले के करंट अफेयर्स टिल 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन. तो आपका जब भी एग्जाम उसके 1 वीक पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़िए. फॉर फेज 2 इट शुड बी 8 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन. सो स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर. आई टोल्ड यू बेसिकली दिसंबर से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली अगर आपका एग्जाम जो है वो फेज 2 अगर आपका जुलाई में भी हो रहा है, अगस्त में भी हो रहा है, देन यू वुड बी एबल टू कवर द करंट अफेयर्स. इससे ज्यादा पहले करंट अफेयर्स मत पढ़िए, क्योंकि वो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज कि कितना पहले वो चीज आपको पता नहीं है. मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे. 5 मंथ्स फॉर फेज 1, 8 मंथ्स फॉर फेज 2. सो फोकस्ड ऑन द सब्सटेंशियल पार्ट, डू नॉट फोकस ऑन द माइनर पार्ट. वहां पे फोकस करने आएंगे तो सब्सटेंशियल वाला पार्ट कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा आपका. ठीक है, Then moving on to the phase 2 component guys. तो phase 2 component में बात करते हैं. So you know finance and management is a paper there. 100 मार्क्स का पेपर है. वहां पे अगर हम फाइनेंस और मैनेजमेंट को डिवाइड करने की कोशिश करें, so that is 50 to 55 मार्क्स का फाइनेंस और 45 टू 50 मार्क्स का मैनेजमेंट. ठीक है, अब अगेन दिस कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है. कोई फिक्स यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है. ये बाइफर्केशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर. यहाँ पे बात करें अगर सोर्सेस की गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द सिलेबस. द सिलेबस ऑफ फेज 2 इज वेल डिफाइंड एक्सेप्ट द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. यहाँ पे सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइंड है. यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर सिलेबस ऑफ द मैनेजमेंट. So what should be your approach guys? Management जो भी टॉपिक है सिलेबस में, whatever topics are mentioned, you have to do the topic thoroughly and सिर्फ कवर नहीं करना, you have to understand the thing. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग is very very important. So if you are able to develop the understanding, then you would be doing good in the examination. क्योंकि right फ्रॉम दिस ईयर ओनली, और कुछ ईयर्स पहले से बात करें, इस ईयर में ज्यादा चीज दिखी कि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा आपको क्रैम याद करने पर आप फोकस करेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ राइट मैनर. यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल थ्योरीज थी वो इस साल आई ही नहीं है एग्जाम में. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट एरिया से आ गया. सो यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस इटसेल्फ. ठीक है, बात करें यहाँ पे कब से आपको स्टार्ट करना है. सो नवंबर दिसंबर में मैनेजमेंट कंपोनेंट स्टार्ट करिए. सो फेज 1 का कंपोनेंट और फेज 2 कंपोनेंट साइमल्टेनियसली आपको लेकर चलना. डू नॉट बाइफरकेट कि लेट मी फिनिश द फेज 1 फर्स्ट, देन आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग द फेज 2. नो, दिस अप्रोच इज रॉन्ग. ठीक है, टेक फेज 1 एंड फेज 2 साइमल्टेनियसली सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट कि यार मेरी फेज 1 की प्रिपरेशन भी हो रही है और फेज 2 की भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दोनों पर फोकस करना है. नवंबर दिसंबर 2024 से नवंबर दिसंबर में आपको ये मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट खत्म करना है. बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, यू कैन इजीली कंप्लीट इन 2 मंथ्स. राइट, फर्दर बात करें यहाँ पे व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. यू हैव टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. आई टोल्ड यू डू नॉट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम. सो डू फोकस ऑन द ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस. मल्टीपल रिवीजन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज अ की गाइस. यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस मल्टीपल रिवीजन जो है बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो मैनेजमेंट वुड बी one of the boring subject for you. लेकिन if you have the clear understanding, then management आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट बनने वाला है. Then बात करें प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. whenever I am saying that you have to complete the topic, which means you have to read the topic, you have to watch the lesson if you have any access. otherwise आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिव देना है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है. then only I would consider कि यहाँ पे you have completed the topics. right, so this you have to focus on. sources की बात करें guys, so यहाँ पे LM Prasad, this book is very very important for the management. और ethics वाले component के लिए this BN Ghosh is important that you can refer, but again do not read the entire book. right, focus on the topic that is mentioned in the syllabus. वही टॉपिक आपको यहां से करने हैं, but along with that you have to focus on previous year papers also. तो आपको ये पता चलेगा, आप एक प्रॉपर सिंक में जाएंगे. You will have the boundaries कि आपको कितना बाहर निकलना है. ठीक है, कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सिलेबस देखिए और बुक्स में से वो टॉपिक उसी डेप्थ तक आपको यहाँ पे कवर करना है. Got it? मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट. ठीक है, फाइनेंस में हमने देखा भी मैनेजमेंट वी हैव सीन कि अराउंड 45 टू 50 मार्क्स का वेटेज है. फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस यहाँ पे बात करें अगेन 50 टू 55 मार्क्स का वेटेज है. दिस कैन चेंज ऑल्सो. करंट अफेयर्स का पार्ट इसमें 10 टू 12 मार्क्स का है. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द स्टैटिक पार्ट, सो दैट इज ऑफ अराउंड 38 टू 40 मार्क्स. ठीक है, फाइनेंस को हमने फर्दर बाइफरकेट कर दिया. सो यू कैन सी द सिलेबस ऑफ फाइनेंस. ये फाइनेंस का पूरा सिलेबस है विच यू कैन सी हियर. राइट, अगेन यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स वेरी थॉरोली.
बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। डू नॉट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा अप्रैल मई के मंथ में, ठीक है, अभी नहीं, अभी यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। देन इफ आई टेल यू अबाउट द कब से स्टार्ट करना गाइस, तो जनवरी फरवरी में अगेन 2025 में, नवंबर दिसंबर में यू हैव टू डू मैनेजमेंट, फेज 1 के 2 कंपोनेंट करिए, और साथ में जनवरी फरवरी में यू हैव टू स्टार्ट द मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी फाइनेंस आपको स्टार्ट करना, मैनेजमेंट नवंबर दिसंबर में करिए, जनवरी फरवरी में स्टार्ट द फाइनेंस, यू वुड बी एबल टू कंप्लीट इन 60 डेज, बहुत है। Again, cover every topic of the syllabus. Do not focus on the most important topics. I already told you. And guys, यहाँ पे practice answer writing. Answer writing is very very important. This year, if you have seen the paper, guys, so वहाँ पे आपको पता चलेगा कि objective बहुत ज़्यादा kind of basically difficult आया था, ठीक है. So if you have good hold over the answer writing, guys, तो उस केस में आपको एक edge मिल जाता है, क्योंकि this year का जो answer writing था इस साल का, वो लगभग at a par था जो पहले आया था, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा difference नहीं था उसमें. So answer writing would definitely make the difference this year because objective part was very difficult this year, ठीक है, in both FM as well as ESI. तो इसीलिए यहाँ पे you have to focus on simultaneously answer writing, and guys also descriptive writing has a weightage of 66.6% in phase 2. So if you do not have command over the substantial part, then how would you expect that you would get the selection, right? So you have to focus on descriptive answer writing is very very important, and do not procrastinate the descriptive writing plans, ठीक है. Simultaneously you have to practice answer. So when you complete the topic, focus on the descriptive, solve with the help of previous year question, write the answers with the previous year question that have been asked from that particular topic. So that would give you an edge, right? Simultaneously you would be preparing. Otherwise what would happen, you would keep procrastinating the plan कि मैं लिख लूंगा बाद में, जनवरी में देखता हूँ, फेब में देखता हूँ. Believe me, you will reach at the stage where you will not have the time for answer writing practice, and at the end what will happen, examination में आप जाकर random लिख रहे होंगे, and you would get the marks accordingly. Got it? Further, if I tell you about the static sources of finance, so यहाँ पे you can refer principles and practices of banking, this book of Macmillan Education, right? Then further यहाँ पे bank financial management and यहाँ पे Indian economy by Ramesh Singh. Guys, again I am saying these all books are not important in its entirety, right? You have to cover limited, you have to use limited you have to use these books in a very limited manner. The topics that are mentioned in the finance part आपको वो देखना है, और फिर आपको उन टॉपिक्स को इन बुक्स में से कवर करना है, क्योंकि अपने आप में, जैसे बात करूं रमेश सिंह की, अपने आप में 1200-1300 पेज की बुक है, ठीक है. सारी चीजें आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो गाइज आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड गाइज कि यहाँ पे ये जो सारी बुक्स को बहुत ही लिमिटेड यूज करना है, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रेफर द लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर पेपर वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कितनी डेप्थ में आपको जाना है, किस हद तक आप यहाँ पे चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द फाइनेंस स्टैटिक पार्ट. फाइनेंस करंट की बात करें तो करंट अफेयर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द दिसंबर 2024. सेम जो मैंने फेज 1 के लिए बोला था वही फेज 2 के लिए एप्लीकेबल है. वेयर एवर इज द करंट अफेयर, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो, यू हैव टू स्टार्ट द करंट अफेयर्स फ्रॉम दिसंबर 2024 ऑनवर्ड्स, एंड these all are the areas, like for example RBI notifications, press releases, ठीक है. सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीजेस, लाइव मिंट है बेसिकली. तो यहाँ पे आपको ये कवर करना है. आरबीआई की वेबसाइट कवर करिए, लाइव मिंट न्यूज़पेपर है उसको देखिए, या तो हिंदू देख लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, कोई भी न्यूज़पेपर देख लीजिए, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर पेपर यू हैव टू डू. और दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज इन द फाइनेंस करंट अफेयर्स. यूनियन बजट, एनुअल रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक सर्वे, राइट. सो ऑल दीज एरियाज यू हैव टू कवर फ्रॉम दीज सोर्सेज, उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हैं. Then moving on to the ESI component, guys, 100 marks का पेपर है. If I tell you about the static part, so that is roughly around 25 to 30 marks, including both objective as well as descriptive. करंट की बात करें so that is of around 70 to 75 marks, ठीक है. यहाँ पे कैसे कैटर करना गाइस, this is the syllabus that you can see. It has been bifurcated into 4 different parts. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. सो इसको, इन सारे टॉपिक्स को अगेन यू हैव टू डू थॉरोली, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें यहाँ पे कवर करनी है डिटेल में. इफ आई टेल यू अबाउट द कि कब से स्टार्ट करने का, सो अगेन जनवरी फरवरी 2025 में यू शुड फिनिश द ईएसआई कंपोनेंट आल्सो. तो आप स्टैटिक पार्ट पूरा फिनिश कर चुके होंगे बाय द फरवरी, तो आपके लिए एक एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज आफ्टर दैट यू वुड बी फोकसिंग ऑन द आंसर राइटिंग पार्ट. अगेन यू वुड बी फोकसिंग ऑन रिवीजन पार्ट, यू वुड बी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स पार्ट. इन सारे एरियाज पर आप तभी फोकस कर पाएंगे when you complete the static part by February 2025, ठीक है.
So again here also you have to cover every topic of the syllabus, and guys answer writing is mandatory. I told you if you have seen the paper, so you can understand the importance of the descriptive writing here, because objective part is unpredictable completely this year, right? So you have to focus on the descriptive part also simultaneously, so that अगर एक section यहाँ पे unpredictable आ जाता है, in that case other section can be done अच्छे तरीके से, ठीक है। बात करें सोर्सेज ऑफ स्टैटिक पार्ट की, सो रमेश सिंह फॉर द इकोनॉमिक्स पार्ट, फॉर द सोशल पार्ट यू कैन रेफर दिस राम आहूजा बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन ये एक चीज याद रखिए, बुक्स है आरबीआई ग्रेड बी के लिए नहीं बनाई गई, ठीक है। दीज बुक्स आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे आपको उसे आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से किस तरीके से यूज करना है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ द सिलेबस, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, देन यू विल डिसाइड किया दिस इज द डेप्थ वेयर आई हैव टू रीच, ठीक है। वहां पे जाकर आपको चीजें कवर करनी है। बहुत ज्यादा सारी चीजें पढ़ने लगेंगे तो फिर वो चीजें आप ट्रैक से बाहर हो जाएंगे, राइट। सो फोकस ऑन द लिमिटेड कवरेज ऑफ दीज बुक्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस, एंड आल्सो गाइस डू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ESI current affairs, when to be started? I told you whatever current affairs are there in phase 1 and phase 2, you have to start from December 2024 for 2025 examination, right? Important areas कौन से यहाँ पर? So ESI current affairs, reports and schemes, these all are the very very important. Reports की बात करें, so last year they had asked too many questions from the reports itself in the descriptive part. This year they had asked too many report question in the basically objective part, ठीक है। तो यहाँ पे report is becoming very very important area, so you have to focus on these all three areas for the current part of the ESI component. Guys here ESI component में current affairs का जो part है बहुत ज्यादा है, around 70 to 75% का weightage है, which means current affairs is a very very important area in the ESI part, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डाउट है गाइस कि एस्पिरेंट पूछते हैं स्कीम्स में क्या सब कुछ पढ़ना है, रिपोर्ट्स में क्या सब कुछ पढ़ना है? नो गाइस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है व्हिच यू हैव टू कवर। हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डायमेंशंस? बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। फॉर एग्जांपल इन द स्कीम्स पार्ट यू हैव टू फोकस ऑन रिलीजिंग मिनिस्ट्री, व्हाट इज द लॉन्च ईयर, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न, व्हाट इज द बजट एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, ठीक है। अगर कोई स्टेट की स्कीम है तो कौन सी स्टेट है, करंट डेवलपमेंट। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दैट यू हैव टू डू फॉर द करंट अफेयर्स, सॉरी फॉर द स्कीम्स पार्ट। रिपोर्ट्स की बात करें यहां पर, तो रिपोर्ट्स में हु इज द रिलीजिंग एजेंसी, थीम क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है, टॉप रैंक कौन है, बॉटम रैंक कौन से हैं, पैरामीटर्स ऑफ रैंकिंग कौन से हैं, ठीक है, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो ऑल दीज आर द डायमेंशन। यू आर नॉट सपोज टू कवर द 100 पेजेस ऑफ रिपोर्ट एंटायरली, वो आपको नहीं कवर करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज सो दैट if in the examination it is asked in the objective part or descriptive part, you would be able to do that. तो ये चीज आपको याद रखनी guys, do not only focus the current affairs from the objective point of view, आपको objective point of view, descriptive point of view दोनों से ही करना। For example report, so last year they had asked too many questions from report in the descriptive part, this year they have asked too many questions from report in the objective part. So आपको पढ़ना एक ही बार है current affairs, you have to apply the logic in both objective as well as descriptive part, right? So if I tell you about the sources of ESI current affairs, so again the Hindu and the PIB current affairs you have to focus on guys. Hindu मतलब यहाँ पे you can take any of the newspaper, right? वो important है आपके understanding के लिए, and also PIB for the for latest initiatives for the schemes part you can refer this particular PIB वेबसाइट, एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए नहीं पढ़ना कि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रादर यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि किसी पर्टिकुलर न्यूज में से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। देन बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कब स्टार्ट करना है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2025 ऑनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे इन द एफएम पार्ट एंड इन द ईएसआई पार्ट, सो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर भी हो रही होगी, ठीक है, आंसर राइटिंग की। बट डेडिकेटेडली यहाँ पे अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सो दैट यू कैन स्टार्ट अप वंस यू कंप्लीट द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया देन यू कैन फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड द बेसिक गाइडलाइंस रिलेटेड टू एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके रिगार्डिंग जो बेसिक गाइडलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर एक बार आपको वो पता है देन प्रैक्टिस बेसिकली बचता है करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहां पे आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो एडिटोरियल्स में से खुद ही आप यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करिए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ऑल्सो यू कैन क्रिएट द क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर ऑन योर ओन फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू कैन समराइज द बेसिकली द पैराग्राफ फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ द रीडिंग सॉरी प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना। ऐसे राइटिंग के लिए वॉट एवर यू आर रीडिंग इन द एडिटोरियल यू कैन जस्ट ट्राई टू रीफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
editorial. You can use the grammarly.com whenever you are writing any answer. You can just put it on the grammarly.com and that will tell you basically कि what are the mistakes that you are committing. चाहे वो grammatical error हो, चाहे वो यहाँ पे spelling mistakes हो, तो Grammarly will tell you. फॉलो वर्ड लिमिट गाइस, वर्ड लिमिट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत कम वर्ड लिमिट लिखते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं. डू नॉट फोकस ऑन दिस. वर्ड लिमिट के आसपास ही लिखिए, +-20 वर्ड्स रख लीजिए, इससे ज्यादा मत कम ज्यादा करिएगा, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड. इवैल्यूएशन गाइस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप चाहे किसी भी कंपोनेंट के लिए लिख रहे हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गाइस, गेट इट इवैल्यूएटेड. इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर इवैल्यूएटेड गाइस, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. गेट योर आंसर इवैल्यूएटेड, चाहे आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, चाहे आपके फैमिली में कोई हो, but get your answer evaluated so that you can get proper feedback and you can incorporate it in the next answer. Then avoid grammatical and spelling errors. Try to avoid this because marks will be deducted if you are committing too many grammatical and spelling errors in the answer itself. So this is how you can practice the descriptive English also, and also refer to the previous year paper. So after referring the PYQ, you will get to know how to prepare this particular component, what kind of topics can be asked in the descriptive English part. Then guys, next is descriptive writing. Descriptive writing is very very important for ESI descriptive writing, FM descriptive writing. ठीक है, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे guys, first of all, read the current affairs both for objective and descriptive, especially the reports mentioned in the syllabus. Guys, whenever you are reading the current affairs, I told you, whenever you are reading the current affairs, keep in mind that you are reading for both objective as well as descriptive. Do not have this notion कि मैं तो सिर्फ objective के लिए पढ़ रहा हूँ. I would read the current affairs separately for the current affairs. No, this should not be done. Whatever reports you are reading, that can be asked in the descriptive part also, that can be asked in the objective part also. Whatever schemes you are reading, so basically दोनों में ही आ सकता है. So do not try to, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए एक ही चीज को बार बार पढ़ने में. rather read it once, keep in mind that you are reading for objective also, descriptive also, right? यहाँ पे you can read all these important reports. इसके अलावा भी बहुत important reports है guys, so do watch this session. ठीक है, that you can find, this is the latest session that was basically uploaded recently, so you can find this session on our YouTube channel guys. 10 most important reports. So in this session I have given the 10 most important reports. So those 10 important reports are very very important for the examination. So do cover all the reports thoroughly for both objective as well as descriptive part. Then understand the demand and requirement of the questions. तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझना. ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक पता है तो आपने वो लिख दिया जो आपको पता है. आपको वो लिखना है जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उसकी. ठीक है, वो चीज आपको लिखनी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते. इसीलिए आई वाज टेलिंग यू बेसिकली कि व्हेन यू कवर द एनी कंपोनेंट ऑफ ईएसआई और एफएम, साथ साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए. ऐसा नहीं कि मैं एक बार में खत्म कर लूं सिलेबस देन आई वुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग. वो बहुत ही गलत अप्रोच है. टॉपिक के साथ साथ आपको कवर करना है इसे. ठीक है, देन मेक अ फ्रेमवर्क बिफोर अटेम्प्टिंग. जब भी आप अटेम्प्ट करते, डू नॉट डायरेक्टली रश इनटू राइटिंग द आंसर. एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लीजिए. 3-4 मिनट लगेंगे आपको फ्रेमवर्क बनाने में. एक बार फ्रेमवर्क बना लीजिए, देन यू कैन कंप्लीट योर आंसर इन 12 to 15 मिनट्स. बहुत टाइम मिलता है आपको. लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, यू जस्ट स्टार्ट रैंडम राइटिंग, तो बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे और फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी. ठीक है, देन फर्दर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस गाइस. फॉर द आंसर राइटिंग यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है, जिस तरीके से एंटरटेनमेंट है, उसी तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दिस इज द ओनली की फॉर एक्सेलिंग इन द आंसर राइटिंग. grammarly.com सेम आपको यहां पर भी यूज करना है. वर्ड लिमिट आपको यहां पर भी ओबे करनी है. ठीक है, इवैल्यूएशन अगेन इट इज मैंडेटरी. इवैल्यूएशन आपके लिए मैंडेटरी है इस केस में भी, यहां पे आपको करवाना है. एंड अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर, जो हमने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले केस में देखा था. राइट, सो गाइस दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू. अगर आपने सारी चीजें फॉलो कर ली तो बिलीव मी यू कैन प्रिपेयर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2025 विदाउट एनी कोचिंग. ठीक है, कोचिंग के बिना भी आप कर लेंगे. देखिए कोचिंग होता क्या है, कोचिंग से बेसिकली यू हैव अ डायरेक्शन. ठीक है, आपको एक मेंटोरशिप मिल जाती है, आपको एक गाइडेंस मिल जाता है. अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, देन यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन और ऑन योर ओन. काफी बच्चे करते हैं, काफी बच्चे क्लियर करते हैं. ऐसा नहीं कि सारे कोचिंग वाले ही करते हैं, बट अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इन सब में बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, जो कि लगेगा एक्चुअल में, आप सारी बुक्स लेंगे, उसमें से आप टॉपिक शॉर्टलिस्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर आप पढ़ेंगे. टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, यू कैन डू द सेल्फ प्रिपरेशन. अगर टाइम नहीं तो यू कैन हैव द मेंटोरशिप ऑल्सो. वहां पे सारी चीजें आपको डेडिकेटेड मिल जाएंगी. वहां पे आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना, आपको एफर्ट सिर्फ पढ़ाई करने का रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन. और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा बिफोर क्लोजिंग द सेशन. दैट इज मॉक्स देने ही देने गाइस. कीप गिविंग मॉक्स. जितने ज्यादा मॉक्स आप देते हैं उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी. फोकस ऑन आंसर राइटिंग एज ऑब्जेक्टिव पार्ट इज बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल. सो इफ यू सी दिस ईयर पेपर 2024 का फेज 2, सो ऑब्जेक्टिव पार्ट इज बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल गाइज. सो यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग ऑल्सो. ठीक है, ताकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट
अनप्रेडिक्टेबल आ जाए तो कम से कम आप यहां पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अच्छा कर सके। देन फर्दर गेट योर आंसर्स इवैल्यूएटेड। आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, गेट योर आंसर इवैल्यूएटेड। जितना ज्यादा आप इवैल्यूएशन करवाएंगे उतने ज्यादा फीडबैक्स आपको मिलेंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करके यू कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स एंड कवर ऑल टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। अब वो सिनेरियो नहीं रहेगा कि आप लिमिटेड टॉपिक के साथ एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहां पे आपको सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, स्पेशली फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन अभी से। तो उस केस में आपको पूरा सिलेबस खत्म करने पर फोकस करना, ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है गाइज। सो दीज ऑल आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ प्रिपरेशन गाइज, विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। एंड दोज हु वांट टू हैव अ मेंटोरशिप गाइज, वी हैव लॉन्च्ड दिस वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन कोर्स। लक्ष्य बैच है हमारा ये। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द लाइव क्लासेस, एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग स्क्रैच से, बिल्कुल ठीक है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आपने कभी फाइनेंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। हम इसको इस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल स्क्रैच से, इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज विद वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कंप्लीटली। और यहां पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना इज नॉट द फोकस, यहां पे हमारा फोकस है आपका फाउंडेशन बिल्ड करना, ठीक है। साथ में आपका बेसिकली यहां पे नॉलेज एनरिच करना, सो दैट दैट नॉलेज कैन बी हेल्पफुल व्हेन यू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड यू स्टार्ट वर्किंग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, फाइनेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, वही आपके आगे चलकर काम आने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं आएगा काम में आपके बहुत ज्यादा, बट स्टैटिक नॉलेज आपके काम आएगा। तो यहां पे डू नॉट ओनली फोकस कि वट एवर टाइम आई एम गोइंग टू डिवोट फॉर प्रिपरेशन 7, 8, 9 months, I should not only focus on clearing the examination, that is the main goal, but सिर्फ उस पे ही फोकस नहीं करना, you have to focus on the लर्निंग अप्रोच, यू हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज एनरिचमेंट, ताकि वो चीजें जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम आपके लाइफ टाइम आपको उसका रिटर्न मिलता रहे, राइट। एंड दैट इज वाई टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स इज लाइव क्लासेस, एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस वी आर कवरिंग फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इन अ वेरी डेप्थ मैनर, राइट। And second is the one-on-one mentorship guys. We are just a one click away. If you just click, basically if you want to connect with us, you can just click and you can book a slot and you can connect whom you want to connect, ठीक है। You can just connect whom you want to connect, जब भी आप कनेक्ट करना चाहे फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हैं। So we are just one click away, क्लिक करिए और हमसे जुड़िए गाइज। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट वी आर प्रोवाइडिंग, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म वी आर प्रोवाइडिंग, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वी आर प्रोवाइडिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स by clicking on the link given in the description box। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्रॉपर तरीके से, उसको क्लिक करके आप आराम से सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं गाइस। एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि दोज हु आर बेसिकली हु वांट टू बिकम ऑफिसर गाइज, उनके रास्ते में यहाँ पे एक कॉस्ट, एक बैरियर नहीं आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू कीप द कॉस्ट एज मिनिमल एज वी कैन। हमने ऑलरेडी काफी कम प्राइस रखा हुआ है, साथ में वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ दिस कूपन कोड। दिस इज माई नेम एंड दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड। सो while subscribing the course, use this coupon code and you can see a drastic discount on the final prices that will make the course more affordable for you. And guys, this is my personal telegram group, इसको भी आप ज्वाइन करिए। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो उसको ज्वाइन करने के बाद बेसिकली whatever query you have you can simply ask me in the group। मैं भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, so you will get aware of that also, right? So the link of the course is given in the description, click on the link, see all the details, ठीक है। सारे deliverables देखिए, if you feel satisfied you can simply subscribe the course by using the coupon code guys। And also in the description we are providing a Google form link, so by clicking on the Google form link what you can do, simply you can ask whatever query you have with respect to the RBI grade B examination, so that our team will get back to you and they can resolve your query। So thank you very much for watching this session guys। I hope this session was helpful, ठीक है, for the self preparation of RBI grade B examination। We'll come out with such more informative videos। Till then, goodbye and happy learning guys।